A very good morning, children. Welcome to the classroom. I hope you all are fine and you all are focused toward your studies and doing the revisions on a regular basis, and the most important, watching my videos. Okay, with this I'm going to start my topic of today. First of all, we should know that we are studying the chapter at social influence and group processing. And in this chapter, many things we have learned. So, many things we have learned in this chapter, children. Many topics we have touched. Today, one more interesting topic which I am going to discuss with you is conformity, compliance and obedience. The topic is conformity, compliance and obedience. Conformity, compliance and obedience. Yes, children, this is a topic. These topics are also related to the group chapter, and it matters. It is a very important topic also to understand. These basically are three concepts. Okay, these are the three concepts when we are in the group or when we are the part of the society. तो ये तीन कंसेप्ट इमर्ज होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट दीज कंसेप्ट. इन कंसेप्ट्स के बारे में वन बाय वन समझेंगे. जैसे सबसे पहले है कंफर्मिटी. कंफर्मिटी क्या है? व्हाट इज कंफर्मिटी? कंफर्मिटी इज अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. कंफर्मिटी एक तरह का सोशल इन्फ्लुएंस है. कंफर्म करना. ओके, व्हेन आप ग्रुप का पार्ट होते हो तो आपको कंफर्मिटी करना पड़ता है, यानी यू हैव टू फॉलो द ग्रुप नॉर्म. सो कंफर्मिटी इज अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, सो यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. आपको कंफर्मिटी करनी ही होती है. ठीक है. जैसे फैमिली, जैसे एग्जाम्पल फैमिली इज अ ग्रुप and we are the part of the family, and as a member we have to do the conformity. Okay, we have to follow the group norm. Compliance क्या है? Compliance is a request made by someone, and if you accept that request, so that is means you are complying, you are comply with it. Okay, you are accepting the request. And obedience क्या है? What is obedience? It is a request or something, an order given by the authority figure. Obedience means both are the concept related to the request. Compliance also and obedience also. But compliance is a request made by someone, but the someone can be anyone. But in obedience, that request is always made by an authority figure. Authority figure means who are in the power, who are elder to you. तो उनके साथ आप कंप्लाई नहीं करते हो, उनके साथ आप क्या करते हो? ओबीडियंस करते हो. आप उनके ऑर्डर्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लायंस एंड ओबीडियंस, and as well as what is conformity. So children, you get to know that how these are the kind of social influence. ये तीनों ही क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस है. सोसाइटी जिस भी हम लोग, वी आर सराउंडेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द सोसाइटी हु इन्फ्लुएंस अस समवेयर इन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैनर. सो इन तीनों ऑल थ्री टॉपिक्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है. पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंफर्मिटी. कंफर्मिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. कंफर्मिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ग्रुप में कंफर्मिटी इज अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस when you are a part of a group and you have to follow the norms of that group. And those who do not follow and those who do not do the conformity,
दे आर नोन टू बी एज नॉन कन्फॉर्मिस्ट। उनको हम लोग कहते हैं कि वो डेविएंट कर रहे हैं सोशल नॉर्म से, जो हैं वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, तो उन्हें हम डेविएंट्स या नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं, जो कन्फॉर्मिटी नहीं करते हैं, डेविएंट्स। और दिस टर्म विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज you are going to appear for a board examination and objective type question MCQs can be asked from anywhere and they play a very important role. Deviants and non-conformist, ऐसे मतलब को हम लोग डेविएंट या नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो बेसिक हो रहे, कन्फॉर्मिटी को अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। I have written this word so that जो difficult words I am writing on the board, hard words. तो सबसे पहले आता है conformity, इसी को डिटेल में हमें पढ़ना है। What we have to discuss in this one, क्या क्या टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करना है। फर्स्ट द मीनिंग ऑफ conformity with an example and the determinants. The two things you have to study in this one. Meaning पढ़ना है आपको और determinants पढ़ने हैं. And some experiment were also there related to the conformity. So that also we will discuss. So basically today in this video we will discuss all about the conformity. Why do people follow group norms? When the only punishment they may face if they do not is the displeasure of the group or being perceived as different. Why do people conform even when they know that the norm itself is not desirable? Conformity, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है। Conformity हमें पता कि conformity is a type of social influence in which the members have to follow the group norm. Here the question arises, why do people conform? Why do people conform? Conform क्यों करते हैं लोग? क्यों conform करते हैं? क्यों conformity करते हैं? Any idea? हम ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप के नॉर्म्स को क्यों फॉलो करते हैं? What is the reason? Yes, children. So there were so many reasons. So there were basically 3 reasons are there which are discussed. So the first is, norms represent a set of unwritten informal rules of behavior that provide information to members of a group about what is expected of them in a specific situation. This makes the whole situation clear and allow both the individual and the group to function more smoothly. Okay? तो क्यों conformity कर रहे हैं? 1 second. Okay. So first reason ये हो गया कि norms से कंफर्मिटी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपको एक सिस्टमैटिक वे में चलने के लिए हेल्प करते हैं, टू मूव इट इन अ सिस्टमैटिक वे। तो एक ये भी रीजन है कि हम लोग कंफर्मिटी करते हैं, ठीक है, ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं ताकि आपकी फंक्शनिंग स्मूथली हो सके और दे विल बी यू डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। सेकेंड होता है, nobody want to be different, okay, not want to be different, not want to be different। आपको पता है ना कि कोई भी कुछ ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अलग नहीं लगना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर एक यूनिफॉर्म है तो एवरीबडी फॉलो दैट रूल, एवरीबडी वेयर दैट यूनिफॉर्म। कोई भी ऐसा नहीं होता कि अलग से कुछ पहन के आ जाए। तो एक्चुअली कोई भी एवरीबडी पीपल डू नॉट वांट टू बी डिफरेंट, दे वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। सो नॉर्म्स को ना फॉलो करके वो एक सेपरेट एंटिटी हो जाएंगे, एकदम अलग हो जाएंगे। इसीलिए वो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं ताकि वो ग्रुप का ही पार्ट बने रहें। और ग्रुप की नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने से एक और भी होता है, दे फील अनकंफर्टेबल। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द पीपल यूजली कंफर्म।
Behavior in a way that differ from the expected form of behavior may lead to disapproval or dislike. Yes children, very important point. जब आप किसी ग्रुप में होते हैं और आप अगर कंफर्मिटी नहीं करते हैं तो लोगों की डिसलाइक आपको मिलते हैं, डिसअप्रूवल आपको मिलते हैं. सो यू हैव टू फेस इट. आपको फेस करना पड़ता है वो. ठीक है. सो यू हैव अ टू ऑप्शंस, either you conform the norms or either फिर actually you don't have any option. conformity हमें करनी ही पड़ती है क्योंकि फिर हमें लोग नापसंद करने लगते हैं, हमें डिसअप्रूवल का सामना करना पड़ता है. तो ये सारे प्रॉब्लम हमें आते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल पनिशमेंट. ये जो डिसअप्रूवल है, डिसलाइक है बाई अदर्स, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल पनिशमेंट. एक तरह से सोशल पनिशमेंट है. नाउ व्हाट इज द थर्ड रीजन? द नॉर्म इज सीन एज रिफ्लेक्टिंग द व्यूज एंड बिलीफ ऑफ द मेजॉरिटी. मोस्ट पीपल बिलीव दैट द मेजॉरिटी इज मोर लाइकली टू बी राइट रेदर देन रॉन्ग. नॉर्म्स जो है वो मेजॉरिटी को डिफाइन करता है. ठीक है. और ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को ज़्यादा लोग फेवर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नॉट वांट टू बी डिफरेंट, नॉट वांट टू बी डिसलाइक. ठीक है. ये सारी रीजन है. थर्ड, व्हाट इज द थर्ड? द थर्ड इज अबाउट मेजॉरिटी. एक व्यू पॉइंट ये लगता है कि अगर मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोग अगर ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करने की बात सही लगती है तो वो कहीं ना कहीं सही होगी. जैसे आपने कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट देखा है, जैसे केबीसी है, तो लोग एक ऑप्शन होता है उनके पास पब्लिक ओपिनियन पोल. तो जिस चीज़ पे पब्लिक का सबसे ज़्यादा रेट होता है वो उस पे ही जाते हैं, उस ऑप्शन पे ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है ज़्यादातर लोग अगर इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं तो इट विल बी द राइट आंसर. तो कंफर्मिटी, यू नो चिल्ड्रन की कंफर्मिटी कैसे कैसे हो रहा है. बेसिकली हम लोग कंफर्मिटी इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ग्रुप से हटना नहीं चाहते. ग्रुप का सोशल पनिशमेंट हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि लोग हमें नापसंद करें, हमें लोग ग्रुप से निकाल दें तो और हमें अपने ग्रुप का पार्ट ना समझें. तो इसलिए भी हम लोग कंफर्मिटी करते हैं. देन ग्रुप में रहने से, नॉर्म्स को फॉलो करने से हमारी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलती है, सिस्टमैटिक चलती है. तो इसलिए भी कंफर्मिटी हो रही है. एंड देन मैक्सिमम पीपल उस चीज़ को एग्री करते हैं तो इसलिए भी कंफर्मिटी होती है. ठीक है. So there were two experiments also children conducted on conformity, and that experiment was done by the two psychologists. Their name was Sharif. The one psychologist name is Sharif and Ash. ASCH. Sorry. Let me write it again. ASCH. So it was known by the name also Sharif experiment and Ash experiment, and these two experiments are very famous in the field of conformity. conformity के फील्ड में ये दो एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस थे, शैरिफ के और एश के. शैरिफ की जो एक्सपेरिमेंट है उसे ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कहते हैं. शैरिफ के एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट. ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट. ठीक है. और एश का जो है वो ग्रुप प्रेशर और कंफर्मिटी पे है. इट इज ऑन ग्रुप प्रेशर एंड कंफर्मिटी. ठीक है बच्चों. तो शेरिफ का एक्सपेरिमेंट ऑटोकाइनेटिक पे है और एश का किस पे है? ग्रुप प्रेशर एंड कंफर्मिटी. सो ये आप अपने माइंड में थोड़ा रखेंगे रिकॉल में. सो थोड़ा सा चलिए अभी इनके एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेते हैं. फिर लास्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट. सो कंफर्मिटी के बारे में तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. आई थिंक आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी. सबसे पहले समझते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट.
क्या है, शेरिफ ने क्या बताया है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में. So yes children, it was a very interesting experiment which was done by Sheriff in order to show the conformity in the people. What happened, he has conducted an experiment on some people and he put them in some groups and they were seated in the dark room. कुछ लोगों को लिया उन्होंने, उनको एक ग्रुप में उन्होंने बना दिया और एक ग्रुप में फॉर्म कर दिया. उन लोगों को उन्होंने एक डार्क रूम में रखा, एक अंधेरे रूम में रखा और क्या किया, दे वर इंस्ट्रक्टेड दैट दे हैव टू फोकस ऑन अ पॉइंट ऑफ लाइट. एक लाइट है जिस पे आपको फोकस करना है एंड यू हैव टू टेल द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पॉइंट ऑफ लाइट. उनमें डिस्टेंस क्या है. नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि दैट एवरीबडी इज टेलिंग देयर एस्टिमेशन अबाउट द डिस्टेंस. ओके, बट स्लोली क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 10 मेंबर्स हैं. 1 मेंबर्स ने अगर कोई डिस्टेंस के बारे में बात करी कि देयर वाज अ फॉर एग्जाम्पल 10.5. ओके, तो सेकेंड मेंबर इज सेइंग 6.5, थर्ड इज सेइंग 8.5, ओके, फोर्थ इज सेइंग 10.5. तो फिर लोगों ने जो बहुत अपोजिट जा रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्टेंस या कम में बताया, उनका भी एस्टिमेशन जो एवरेज डिस्टेंस है उसी पे ही फोकस हो रहा था. बेसिकली वे लोग कन्फॉर्मिटी कर रहे थे. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था इस एक्सपेरिमेंट का कि वो जो पॉइंट था वो मूव भी नहीं कर रहा था. Okay, it was not moving at all and that is why this experiment was known as autokinetic effect by Sheriff. Autokinetic का मतलब ये आपको मालूम है, kinetic is related to the movement से related है, और ऑटो यानी कि ये माइंड में उनके वो था कि वो मूव कर रहा है क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था तो वे उसी को फॉलो कर रहे थे. Although the point is not moving at all. So this is known as autokinetic effect. Now, similar interesting experiment was done by the Solomon Asch, which is known as the Asch experiment. Let us discuss about it. So, Asch का भी experiment बहुत ही interesting था. Asch ने क्या किया, Asch के एक्सपेरिमेंट में 5 पार्टिसिपेंट्स थे. There were 5 participants in Asch experiment. There were 5 participants. In these 5 participants, one is only the true subject. एक ही जो था जो कि ट्रू सब्जेक्ट था. रेस्ट ऑफ दी जो 4 थे दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटर. जो एक्सपेरिमेंटर थे वो उन्हीं के ही पार्ट थे, रिसर्चर और एक्सपेरिमेंट के ही पार्ट थे, बट ये हाइड किया गया था. ठीक है, ट्रू सब्जेक्ट डजंट अवेयर अबाउट इट. नाउ उनके सामने एक एक्सपेरिमेंट ये रखा गया, एक स्टैंडर्ड लाइन दी गई थी और फिर उसके लिए एक कंपैरिजन लाइन दी गई. स्टैंडर्ड लाइन थी और उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया ABC कंपैरिजन लाइन जिसकी लेंथ डिफर थी. ओके, नाउ इट वाज आस्क्ड टू देम दैट दिस पर्टिकुलर लाइन इज सिमिलर टू विच ऑफ द ऑप्शन. मीन्स यू हैव अ 3 ऑप्शन और इस लाइन में से इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी लाइन से ये मैच करता है. तो एवरीबडी इज रेस्पॉन्डिंग रॉन्ग आंसर एंड दैट लास्ट ट्रू सब्जेक्ट, जो ट्रू सब्जेक्ट था वो भी जान रहा था कि इट वॉज अ रॉन्ग आंसर, बट बिकॉज द मेजॉरिटी वॉज सेइंग द रॉन्ग आंसर सो वो भी रॉन्ग बोल रहा था. तो दिस वॉज अ वेरी मैजिकल पार्ट ऑफ द कन्फॉर्मिटी. यस चिल्ड्रन, ये होता है, इट हैपन. समटाइम क्या होता है ना, ज़्यादा लोग अगर उस बात को बोलते हैं ना, गलत बात भी, एक बहुत सिंपल फंडा अगर हिंदी में हम इसे बोलें तो ये यही है कि जब कोई बात को ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं गलत, तो सही भी गलत हो जाता है और गलत भी सही हो जाता है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट कन्फॉर्मिटी. तो एश ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट 67% सब्जेक्ट शोड कन्फॉर्मिटी एंड गेव द सेम इनकरेक्ट आंसर एज द मेजॉरिटी.
इनकरेक्ट आंसर दे रहे थे। तो जो ट्रू सब्जेक्ट था वो भी इनकरेक्ट ही आंसर दे रहा था, क्योंकि उसको खुद पे डाउट हुआ और उसको लगा मेजॉरिटी अगर इस चीज पे रिलाई कर रही है, दे आर गिविंग दिस ए ऑप्शन करेक्ट, सो दैट ट्रू सब्जेक्ट इज ऑल्सो डूइंग द conformity. So I think conformity concept will be clear and the experiment were clear of the Sheriff autokinetic and Ash experiment. Now let us study about the determinants. डिटरमिनेंट्स और द फैक्टर्स ऑफ कंफर्मिटी। कंफर्मिटी को क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं, क्या चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। सो सबसे पहला है साइज ऑफ द ग्रुप। द फर्स्ट इज साइज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का साइज कैसा है ये भी डिटरमाइन करता है कंफर्मिटी को। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कंफर्मिटी इज ग्रेटर व्हेन द ग्रुप इज स्मॉल देन व्हेन द ग्रुप इज लार्ज। ठीक है। Why does it happen? It is easier. So you know why does it happen? Obviously, see जब ग्रुप जो है स्मॉल है तो स्मॉल में अगर आप कंफर्मिटी नहीं करेंगे तो you get to be noticed very easily. बट अगर ग्रुप लार्ज है, अगर मान लीजिए सपोज द ग्रुप इज ऑफ 1000 and in 1000 if one or two do not conform, so it doesn't matter. But if the group is of 10, so other if anyone will do not conform to the group, so it will be noticeable. So size of the group means small size होगी तो conformity होगी, लार्ज साइज होगी तो हो सकता है मे बी conformity ना भी हो। ठीक है। So conformity is greater when the group is small. When the group is small. Next, size of the minority. Size of the minority. Minority means जो कम है उनकी साइज भी डिटरमाइन करती है conformity को. Their size also determine conformity. So minority की भी साइज डिटरमाइन करती है। अगर minority की साइज इंक्रीज हो रही है यानी वो मेजॉरिटी में जा रही है तो कंफर्मिटी यानी कम होगी। तो माइनॉरिटी की साइज कैसी है? माइनॉरिटी की साइज अगर स्मॉल है अगेन, ठीक है, कम है तो फिर कंफर्मिटी होगी। यही माइनॉरिटी की साइज अगर बड़ी हो जाती है, लार्ज होती है, यानी इट विल देन बिकम अ मेजॉरिटी। ओके, साइज अगर माइनॉरिटी की बढ़ जाए तो यानी वो मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? कंफर्मिटी क्या होगा? डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। थर्ड डिटर्मिनेंट है नेचर ऑफ द टास्क। आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें ग्रुप का साइज भी डिटरमाइन कर रहा है, माइनॉरिटी का साइज भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है। नेचर ऑफ द टास्क। नेचर ऑफ द टास्क, टास्क का जो नेचर है यानी टास्क आपका कैसा है वो भी डिटरमाइन करता है कंफर्मिटी को। A very interesting point also कि नेचर ऑफ द टास्क यानी जो टास्क का नेचर है कैसा है, मीन्स आपके पास जो टास्क ऐसा दिया गया है वो किस तरीके का मतलब दिया गया है। कहने का मतलब ये लाइक ऐश के एक्सपेरिमेंट में आपको रेस्पॉन्स जो था वो करेक्ट और इनकरेक्ट में देना था या ऑप्शन चूज करने थे। तो जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन होता है, जब कभी ऐसे टास्क होते हैं जहां वेयर यू हैव टू आंसर इन, सो ऐसा कोई टास्क, ओके सॉरी चिल्ड्रन, सो ऐसा कोई टास्क है जिसमें द टास्क और द वर्क इन विच यू हैव टू रेस्पॉन्स इन यस और नो और करेक्ट और इनकरेक्ट, तो देयर द कंफर्मिटी इज मोर। ओके, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको वोटिंग करनी हो रही है यस और नो, तो वहां पे कंफर्मिटी दिखती है। बट अगर आपसे कुछ ऐसा टास्क दिया जा रहा है, लाइक कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपसे सिर्फ व्यू पॉइंट आपके लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें चीजें वेरिएट करें, डेविएंट करें। ठीक है,
तो टास्क भी कैसा है ये भी डिटरमाइन करता है कंफर्मिटी को। जैसे करेक्ट और इनकरेक्ट या ट्रू फॉल्स या यस नो में जब आंसर माना जाता है तो ऑब्वियसली इट वाज अगेन अ नोटिसेबल पॉइंट, वो फिर से एक नोटिसेबल हो जाता है, हाईलाइटिंग हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव टू कंफर्म। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक ग्रुप में, सपोज यू आर इन अ ग्रुप एंड यू आर इन अ ग्रुप ऑफ 50 एंड देयर वाज अ 50 मेंबर्स इन अ ग्रुप एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप द 48 members are saying yes and only 2 members are saying no. So it is highlighted why they are saying no. Everybody will raise the question. Everybody will ask the question why they are denying, why they are becoming deviant, why they are having non-conformist. तो ये होता है। तो नेचर ऑफ द टास्क, सो ये सारी चीजें हैं जो हमें डिटरमाइन कर रही कंफर्मिटी को। साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ द माइनॉरिटी, size of the nature of the task. The next most important determinant is the public or private expression of behavior. Yes children, this also determine the conformity. Okay, fourth point is public और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर यानी आपका जो बिहेवियर का एक्सप्रेशन है, यानी आप कैसे कर रहे हो, पब्लिक हो रहा है या प्राइवेट हो रहा है। आपको क्या लगता है चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन गेस पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर, व्हाट यू कैन गेस? I think you will guess C. पब्लिकली अगर कोई चीज हो रहा तो आपको कंफर्मिटी करनी पड़ेगी, बट सब टाइम अगर वही एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर आपको प्राइवेट कर ले तो हो सकता है आप कंफर्मिटी ना करो। जैसे वोटिंग पोल्स होते हैं, नोबडी नोज हु इज गोइंग टू वोट टू होम। ठीक है, किसको वोट दिया जा रहा है, क्यों, ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये एक होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। सो देयर वर टू सिचुएशन। ओके, द वन सिचुएशन इज ही इज आस्किंग फॉर द ओपिनियन एंड इन अ पब्लिकली, like he is asking in an assembly ground the opinion about you, about any topic. Okay, so there what you show is a different expression of behavior, but when he is asking that everybody will tell me their opinion and their problem, they will write down it on a page, and there was a box, I put it on and you have to keep it on. So maybe उसमें different variables are, different behavior है। सो चिल्ड्रन आप समझ रहे हैं कि जब हम लोग पब्लिकली एक्सप्रेशन करते हैं तो इन दैट केस द कंफर्मिटी रेट इज वेरी हाई, बट इन कंपैरिजन टू दी पब्लिक प्राइवेट एक्सप्रेशन में लेस कंफर्मिटी फाउंड होती है। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डिटर्मिनेंट ऑफ कंफर्मिटी इज पर्सनैलिटी। इन सब के अलावा सो देयर वर 5 डिटर्मिनेंट्स। पर्सनालिटी भी डिटरमाइन करती है कंफर्मिटी को। यस, आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये भी तो डिटरमाइन करेगी ना। पर्सन आप कितना स्ट्रॉन्ग हो, एजर्टिवनेस है कि नहीं आपने। एजर्टिवनेस मीन्स एजर्टिव पर्सनालिटी यूजली डू नॉट कंफर्म, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस होता है, दे इजली से नो टू एनीथिंग। ओके, इट इज वेरी इजी फॉर देम। सो ये भी डिपेंड करता है कि वे करेंगे कि नहीं करेंगे। सी we also find that some individuals have a conforming personality. Such person have a tendency to change their behavior according to what others say or do. Yes children, पर्सनालिटी की बात हो रही है तो किसी किसी की कंफर्मिंग पर्सनालिटी ही होती है और किसी की नॉन कंफर्मिंग होती है।
वो जल्दी कंफर्म नहीं करते हैं आपके नॉर्म्स को, ठीक है। By contrast, there are individuals who are independent, do not look for a norm in order to decide how to behave in a specific situation. Research has shown that highly intelligent people, those who are confident of themselves and those who are strongly committed and have a high self-esteem are less likely to conform. So, कौन ये research हुए हैं? It is not I am saying, it was a research done and it is proven that कौन से लोग कंफॉर्मिटी नहीं करते, जो इंटेलिजेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही कमिटेड होते हैं और जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है, तो वो यूजली कंफॉर्मिटी नहीं करते हैं। तो फिर थोड़ा सा वही प्रॉब्लम आते हैं, डिसलाइकिंग उनको फेस करना पड़ता है, अ काइंड ऑफ सोशल पनिशमेंट फेस करना पड़ता है, पर दे कैन हैंडल इट। ओके, so here we have completed the topic conformity. Okay children, I hope you understand it, and just I say thank you so much for carefully observing my video. Thank you.